अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम सलाम सर। हाँ जी, क्या हाल चाल है सबका? आप सुनाए सर, कैसे हैं? ग्रेट ग्रेट। ऑन करो भी सारे कैमरेज, चांद चेहरे, रोशन, ब्राइट फ्यूचर। फजीला कैसी हो? आई एम सो सॉरी फजीला, ऑन बिहाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड द गवर्नमेंट, आई अपोलोजाइज। आई डोंट नो व्हाट दे आर अप टू, बट अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन कुछ ऐसी है कि कैंपस के ऊपर जो है ना, दे डोंट अलाउ more than 30% of the students for the time being. So, eh, कोई बात नहीं. So, we'll compensate it with some uh, with a very nice video. I'll show you at the end of the course. ठीक है? So it will be about one of the greatest scientists that was there, and uh, you will learn a bit of systems biology from that man. ठीक है? So this is my promise to Fazila and the rest of the class. ये मुझे आपने याद करवाना है 14th क्लास में. ठीक है, चलो. सो सर हमारा सारा भी ऑनलाइन चलेगा या हम ऑन कैंपस में ऑन कैंपस नेक्स्ट क्लासेस लेंगे? असल द प्रॉब्लम इज कि कुछ हमारे स्टूडेंट्स जो है ना, उनको यूनिवर्सिटी हैज नॉट परमिटेड ड्यू टू a cap on the total number of heads in the campus. तो वो फिर it might be impossible for them to come. तो फिर उस वजह से ऑनलाइन ही चलना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली. I was looking forward to meeting all of you in the class, but सर हम चलो. वैसे आप आके मिल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं यार, मैं इधर वहीं उसी ऑफिस में हूँ जहाँ मैं पहले होता था. मैंने I'll be very happy to meet all of you. ठीक है, थैंक यू सर। चलो सर शुरू कर. हाँ, अगर डे स्कॉलर्स हैं तो आई गेस आप उनको ईमेल अगर करते हैं तो सिर्फ गेट पे एक ईमेल दिखानी होती है कि आपके पास एक्सेस है या नहीं. तो अगर तो डे स्कॉलर्स हैं तो फिर तो आ ही सकते हैं. हाँ बेटे, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग दूसरे शहरों से हैं, कराची से हैं, तो वी आर स्टक. अदरवाइज ये डे स्कॉलर वाला मसला तो कोई वो ये तो हम हल कर ही लेते हैं, बल्कि किया हुआ है बहुत सारों के लिए. तो दिस इज द सिचुएशन. I hope that systems biology will not be much affected by the online teaching. But anyway, अगर आप लोगों को कोई problem, we have a superb TA Manur. We have all the support that we need after the class. Of course, I am there as well. Hayat and for Hassan, जो लोग interested in to visit me and to discuss, you're always welcome. So teaching is prioritized over my research. So if you come in to my office asking for help, I will prioritize it over the research activities at the lab for sure. Okay, that is a given. You don't have to even ask for permission or anything. थैंक यू Right? सर। थैंक यू सर। वेलकम. अच्छा बच्चों, सो थोड़ा सा शुरू करते हैं इस दफ़ा जहां अट्रैक्टर के ऊपर हम रुके थे, और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार एग्जांपल दूंगा, and it might just compensate a bit of the moral hurt that we had due to inability to meet in person. तो फजीला से शुरू करते हैं. So फजीला, in old times, so there were these very big cannons, वो जो cartoons में भी हम देखते हैं और museums में भी हम देखते हैं, है ना? And they had these big cannonballs that they would spit out and kind of wage war and all that. So imagine we have an opportunity to visit Lahore Museum, and we could borrow a few cannonballs from the Mughals times, and we bring them over to the LUMS campus. Okay? So, and all of those cannonballs would probably weigh about a good 10 to 20 kilos, right? Because they were made up of metal and lead and other heavy metals. And then I would have to request
Zainab and AG to go to the playland and borrow a trampoline from their repertoire. Okay? You know what a trampoline is. Okay? So imagine there is a bed sheet that is the size of a cricket stadium. ठीक, and you're holding the four corners. अब हमारा volunteer हमें चाहिए जो चार corner पकड़ लें उस bedsheet के. So any volunteers? Yes, sir. All right. So we have two, Hassan and AG. We need two more. और कौन है भाई? I'm here. Rida and Zainab. Okay. So we have Rida, Zainab, Hassan and AG holding the four corners of the trampoline. You got the bedsheet. Okay. क्योंकि trampoline गोल होती है ना तो वो गोल के corner नहीं होते. Let's consider a bedsheet. So we have four people holding the four corners of a bedsheet that is the size of our Lams cricket stadium. I hope all of you have seen that stadium, right? It's pretty big. Now, Fazila and I, given that we borrowed those cannonballs from the, we bring them into the campus. Of course, they are obsolete, so they'll not be treated as ammunition anymore. So, the campus. And one after the other, Fazila is going to pitch the trampoline, the cannonballs into the bedsheet. Okay? So she's going to pull up all her energy and throw this 20-kilo ball right into the center of the bedsheet that is being held by four different people. Right? What will be the result? Anyone? Think because of the weight. हाँ, बिल्कुल ज़ैन. वहाँ पे एक depression बन जाएगा, है ना? True. Just like a tractor. Just like an attractor. अच्छा, अब फजीला ने क्या किया है कि so she's obviously missing the campus. ठीक है, so she goes around the cricket stadium from the other side and throws in a second cannonball into the bedsheet from a different position at a different position. ठीक? So what will be the result? हाँ जी. Second. Another depression. Second Another depression. हाँ, दो depression बन जाएंगे, ठीक है? Of course, you know, I also want to, you know, play this game, and we brought in several cannonballs. So I also pitch in a couple. Okay? So we will have 4 different depressions or 5 different depressions in the bedsheet. है ना? Yes. अब हम AG को, बल्कि AG ने तो बेडशीट पकड़ी हुई है 4 कोने उसके, अब हम हयात को पकड़ते हैं और हयात से कहते हैं कि हयात एक ना टेबल टेनिस बॉल पकड़ो या टेनिस बॉल और उसको ना एक उस बेडशीट के कोने के ऊपर आप लेट इट रोल. What will become of that small table tennis ball, ping pong ball? It will fall into one of those depressions. It will trace the trajectory, है ना? आहिस्ता 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 move करते करते जहाँ पे lowest point होगा उस depression का stable हो जाएगा. Hayat, is that right? Is she here? I think Hayat has dropped. तो अच्छा, अब चीज ये है कि हम ये काम मुख्तलिफ पोजीशंस पे टेनिस बॉल के साथ हयात करती, ठीक है? So she goes around the cricket stadium and she keeps placing those ping pongs all along the bedsheets corners. So what do you expect? What will be the grand outcome? Eventually system attractor में चला जाएगा. Eventually, मुख्तलिफ ping pongs will go into मुख्तलिफ attractors. है ना? They will reach different depressions depending on the position at which they were let free. You know, they were let go. है ना? ठीक है ना? अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अच्छा कुछ definitions मैं आपको देता जाता हूँ. So every depression that you have as a result of the cannonball pushing the bedsheet deep into the depression is called an attractor. ठीक है? It's a
it's one part of the bed sheet that kind of has a lower, uh, uh, a very high probability of it to be achieved or reached through the ping pong, है ना? It is the same part of the fabric, right? जो attractor के अंदर आपकी location है, it is one part of the same fabric, right? Am I right? Yes. है ना? अच्छा, इसी तरह और parts of the bedsheet भी हैं जो कि आपको higher probability देते हैं कि वहाँ पे ping pong पाया जाएगा. Asha, so tell me something. If there were 100 pieces made out of this bedsheet, what will be the probability of a ping pong to be found at each piece? If we were to cut sheet into 100 pieces, what will be the probability of the ping pong to be found on a specific piece? 1 by 100. 1 by 100. Very good, 1 by 100. लेकिन बेटे देखो अभी हमने उसको attractors में convert कर दिया था by putting in those heavy cannonballs. So will it still be 1 by 100, Fazila? No, then attractor की probability ज़्यादा, तो we will have to Multiply. adjust that. Fazila, so the probability of the attractors Is more. is 1 by 100. They will be 1 over 50 or 1 over 10 or 1 over 2 perhaps, right? Depending on the number of depressions, right? Then So- हम सर उसको 1 में से माइनस करेंगे जो attractor की probability और बाकियों को equally divide कर देंगे. हाँ, अगर हसन एक ही अट्रैक्टर है, तो अगर दो अट्रैक्टर हैं तो फिर आप उसको उनको दो. sum करेंगे. हाँ. Yes. तो बच्चों, अब मुझे ये बात बताओ कि फजीला ने और मैंने भी थोड़ा सा गौर किया तो हमें ये पता चला है कि हमारे जो हम कैनन बॉल्स लेके आए थे उन सब का वजन, वो देखने में एक जैसे थे लेकिन उनका वजन डिफरेंट था. हुआ. Depressions पे different, उनकी depth different होगी. उनकी डेप्थ डिफरेंट होगी. ठीक है रिदा, इज दैट राइट? Yes, sir. सो अगर डिप्रेशन की डेप्थ डिफरेंट है तो हम क्या फजीला ये कह सकते हैं कि उनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं होगी? डिफरेंस की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं होगी. हसन अभी कह रहा था हमें कि सबको ऐड करके नंबर ऑफ कैनन बॉल से डिवाइड कर दें, है ना, ताकि वो टोटल उनकी निकल आए, आपको एवरेज मिल जाए. लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो इक्वल नहीं है. सो दे विल नॉट बी हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ डिप्रेशन. सो अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक शीट है जिसके 100 पीसेस की हैं, अभी कोई कैनन बॉल नहीं, प्रोबेबिलिटी इज 1 by 100. 100 पीसेस के अंदर हमने कैनन बॉल्स थ्रो कर दी हैं. अब प्रोबेबिलिटी जो लेट्स से 4 कैनन बॉल्स हैं, सो चारों की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी अगर कैनन बॉल्स का वेट बराबर है. अगर यानी कि वो जो 100 पीसेस की प्रोबेबिलिटी है वो उन 4 पीसेस में कन्वर्ज हो जाएगी. उनको हम कहेंगे 4 स्टेडी स्टेट्स. ठीक है, आप कहीं भी पिंग पोंग रखेंगे उन्हीं 4 पोजीशंस में से किसी एक पे पिंग पोंग जाएगी और किसी जगह पे नहीं. फजीला, मैं ठीक कह रहा हूँ? फजीला इज आउट. हयात, जी सर. आप सिर्फ बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ अट्रैक्टर्स में जाएगी, उसके अलावा प्रोबेबिलिटी बाकी यानी जो टुकड़े उनकी जीरो कर दी. हाँ बेटे देखो, क्या ये मुमकिन है कि मैं पिंग पोंग कहीं यहाँ पे छोड़ूं हायर पोटेंशियल पे और वो लोअर पोटेंशियल पे ना जाए? Stability achieve करने के लिए प्रोबेबिलिटी वैसे तो बहुत कम है, लेकिन हम उसको अप्रोक्सीमेटली जीरो कह सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी इज एक्सट्रीमली लो फॉर दिस. हाँ, I would say the probability is 0 because हम एक क्लासिकल सिस्टम की बात करें, ऑनेस्ट सिस्टम की बात करें, उसमें कोई एबरेशन नहीं हो सकती. ठीक है. यस. अब अगर हमारे 4 जो कैनन बॉल्स थे उनकी प्रोबेबिलिटी 0.25 हो गई, अगर हम उनकी प्रोबेबिलिटी चेंज कर देते हैं, ठीक है, सो जो प्रोबेबिलिटी चेंज कर देते हैं वो इस तरह हम कर लेते हैं कि एक कैनन बॉल इज 1 kilo, the second is 2 kilo, the third is 3 kilo and the fourth is 4 kilo. So probability का ऑर्डर कैसे चेंज होगा?
4 वाले Four- की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होगी. हाँ 3 वाले की फिर उससे कम, 2 वाले की उससे कम, 1 वाले की सबसे कम। Yes sir. 1.2 0.3 0.4 हो जाएगी. Yes sir. Yes. Eventually sum to 1 को ही करना है. Yes. हाँ सम 1 को करना चाहिए. फजीला इज दैट प्रमोशन? फजीला आई कांट हियर यू. अच्छा फिक्स योर माइक. हम उतनी देर जो है ना कॉन्वर्सेशन करते हैं. आई थिंक यू आर एबल टू लिसन टू अस. ठीक है. सो मैं इलेबोरेट कर रहा था कि प्रोबेबिलिटी डिफर कर देगी. अच्छा बच्चों, सो ये जो आपने सिंपल सी अजायब घर और क्रिकेट स्टेडियम में जो बड़ी सी आपने शीट के ऊपर कैनन बॉल्स थ्रो करके एग्जांपल अंडरस्टैंड की है, इसको आज से कई 100 साल पहले देयर वाज दिस गाय हु स्टडीड इट. He named this as the attractor landscape, and his name is famously known as Waddington. So we call it Waddington's landscape and Waddington's epigenetic landscape. In fact, आपने ये बहुत जगह पे ये टर्म सुनी होगी, है ना? So this is exactly what he said. There are some steady states. Steady state कौन सी होगी बच्चों? जो जहाँ पे आपका कैनन बॉल रेस्ट कर रहा होगा. ठीक है, राइट. और अनस्टेडी स्टेट्स कौन सी होंगी? जो आपकी ट्रैम्पोलिन के ऊपर बाकी स्टेट्स हैं other than the position at which the cannonball has come to rest. So this is called the attractor landscape. Okay. So attractor landscape by definition is the organization or the scatter of attractors in a spatial dimension. So इस चीज को आज हम एक फिगर के साथ देखते हैं. आ जाओ. चलिए ये स्टेडी स्टेट और अनस्टेडी स्टेट जरा दोबारा काइंडली बताइएगा. हम स्टेडी स्टेट यानी अट्रैक्टर्स को कह रहे हैं या अनस्टेडी स्टेट अट्रैक्टर को कह रहे हैं? हाँ, स्टेडी स्टेट इज ओनली द अट्रैक्टर, जहाँ पे आपका जो पिंग पोंग है वो जाके सेटल हो जाएगा. ओके. स्टेट. ठीक है. उसके अलावा बाकी सारे अनस्टेडी हैं. बाकी सारे अनस्टेडी हैं. एक्चुअली वी कॉल देम द ट्रांजिएंट स्टेट्स. ठीक है, ट्रांजिएंट स्टेट्स. चलो, ओके. सो लेट्स शेयर सम स्लाइड्स. अच्छा देखो, सो इज दिस द एग्जांपल दैट वी वर जस्ट डूइंग कि हमारे पास एक लाहौर के अजायब घर से वी हैड अ कैनन बॉल एंड इट वाज काइंड ऑफ ट्रैवलिंग इनटू अ स्पेसिफिक डिप्रेशन. ठीक है. So these states, ये जितनी आपको mesh बनी हुई यहाँ पे grid नजर आ रही है, so these are all transient states. और ये जो नीचे state है, this is the steady state. All right? अच्छा. So put together, this entire thing is called the attractor landscape. Alright? अच्छा, इसमें कुछ चीजें मैं आपको एक्सपेंड करता हूँ और बताता हूँ कि अट्रैक्टर लैंडस्केप जो है ना वो कैसे चेंज कर सकते हैं. मुझे ये बताओ कि अगर हयात जो है, क्योंकि ज़ैनब ने, रिदा ने, हसन ने और एजी ने तो शीट के 4 कोने पकड़े हैं और मैं और फजीला बिजी हैं कैनन बॉल उसके अंदर ड्रॉप करने में. So what Hayat does is she goes from under the surface of the sheet and she just pushes one of the attractors upwards. उससे क्या होगा? अट्रैक्टर डिवाइड हो जाएगा. एनर्जी नीचे थी वो ऊपर चली जाएगी. हाँ, so the depression will actually be pushed up. And once Hayat leaves it, a new attractor will be formed at some other position or the same position perhaps. अब probability सारी change हो जाएगी. हाँ, probability change हो जाएगी. So she has done is she has perturbed the landscape
by adding energy from outside of the system. Okay? From outside of the Hayat is not part of the taut bed sheet, right? The bed sheet is very taut. उसके अंदर 4 हमारे कैनन बॉल्स जो इधर उधर हमने फैलाए थे. So Hayat comes in with an X amount of energy from outside the system, and she just perturbs one of the attractors such that one of the cannonballs, it moves from its original position to a new position. Okay? So इससे एक नया अट्रैक्टर लैंडस्केप बन जाए. आप सब एग्री करते हैं? Yes, but sir, Hmm. if a new attractor, if even if new attractors are formed, so the probability उनकी overall in the end same नहीं होगी जितनी पहले थी. Is it also because the energy that she has given in, वो भी उसमें add up हो जाएगी? हाँ, हयात ने जो एनर्जी इनपुट की है ना, that energy input has been transformed into a redistribution of the attractors within the landscape. That is it. आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि probability at the end of the day फिर वही होगी क्योंकि कैनन बॉल का वेट चेंज नहीं हुआ है. Exactly. However, the energy input to the system will be used to modify the distribution of the attractors in the landscape. बात क्लियर होगी? It's Yes, very yes. important. सिर्फ वो एनर्जी यानी एंट्रोपी चेंज में जो यूज हो जाएगी. हाँ बिल्कुल, ऑर्डर चेंज हो गया सिस्टम का. सिस्टम के अंदर जो ऑर्डर था ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन थी अट्रैक्टर्स की, वो वेरी कर गई है पहले की. ठीक है. अच्छा ये देखो, अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड पार्ट ऑफ द स्लाइड में आप देखें. सो कुछ आपके, अब हम उन कैनन बॉल्स की तरफ आ जाते हैं जो इक्वल साइज नहीं थे. ठीक है. सो कुछ कैनन बॉल्स जो थे ना वो लाइट थे तो यहाँ पड़े हुए थे, कुछ बहुत हैवी थे सो वो यहाँ पे थे, कुछ और थे जो इस तरह stuck थे different positions के. Fine. Now Hayat came in and pushed this attractor, and what happened was कि perhaps your attractor landscape, it changed into that. ठीक है? Okay. Now what I want you to understand is कि हयात ने जो एनर्जी इनपुट की है in order to convert, in order to transform the landscape from its current form to the updated form, वो different हो सकती है. For instance, there can be some cannonballs that weigh less than others and will only require a small amount of energy to create the perturbation, right? However, there will be some very heavy cannonballs that will not be very convenient to move. So she will have to input a very large amount of energy to perturb that attractor. So the key idea that we are adding now to the discussion is the amount of energy required to modify the attractor landscape. It will depend on what kind of attractor you have. Okay, if it's a stable attractor, you will have to input a large amount of energy. If it's a relatively unstable attractor, you will have to input a relatively small amount of energy. Do we all agree on that? Yes, sir. Yes, sir. Brilliant, brilliant. Okay, so let's move ahead. Applications in biology. So देखो, biology में आपको पता है, you're all biologists, so there are pluripotent cells. Yeah, आपका initially stem cell होता है, वो differentiate करता है, differ कर जाता है, change हो जाता है over time into specialized forms of cells. Initially जो stem cell होता है, एक ही cell होता है, और वो उसके बाद आई का सेल भी बन जाता है, वो आपका हेयर का सेल भी बन जाता है, वो आपका स्किन भी बन जाती है, बोन्स, गॉड नोज व्हाट एल्स, राइट? सो दिस इज differentiation process. The differentiation process of the pluripotent stem cells, they become diversified into a wide variety of cells. Differentiated. ये कहूँ कि there is कि जिस तरह मैं और फजीला आए थे वो पिंग पोंग लेके, अगर हम एक स्टेम सेल लेके आते हैं
और हम उस ट्रैम्पोलिन के डिफरेंट positions पे we let go of that ping pong. Depending on the position at which that ping pong was released, the attractor selected by that ping pong will be different. Everybody agrees? Yes, sir. जी ठीक है, जी डिपेंड करेगा कि आपने पिंग पोंग किस पोजीशन पे छोड़ी है। ठीक है, अगर आपने किसी एक जगह पे रखी है तो वहां से वो किसी और अट्रैक्टर में चला जाएगा, किसी और जगह पे रखी है तो किसी और अट्रैक्टर में चला जाएगा। ठीक सर है, आप कहना चाह रहे हैं कि प्लूरीपोटेंट से वो मल्टीपोटेंट हो जाएगा, मींस कि अगर स्टेम सेल को मैं बोन मैरो में रखूंगा तो वो सिर्फ ब्लड के सेल्स ही बनाएगा। बिल्कुल सही। सो वो जो कॉन्टेक्स्ट है स्टेम सेल का, दैट इज योर अट्रैक्टर लैंडस्केप। और हर टिश्यू का अट्रैक्टर लैंडस्केप डिफरेंट होता है। उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उनके डिफरेंट सेल फेट्स होते हैं, डिफरेंट डिप्रेशन होते हैं। सो जो भी स्टेम सेल है, तो इसीलिए हम स्टेम सेल थेरेपी जो है अब कर सकते हैं, क्योंकि हम उनको स्टेम सेल्स को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में रख के हम उनको स्पेशलाइज करवा सकते हैं इन लाइट ऑफ दैट लैंडस्केप। Isn't that powerful? यस सर। Yes, yes. है ना? अच्छा, नाउ स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती, एक चैप्टर और है। Although I think it's already too much on your heads, but anyway, इट्स इंटरेस्टिंग सर। it's interesting. यस Good to सर। अच्छा देखो, एक इसमें ना चैप्टर और है हमारी स्टोरी का, वो पता क्या है? वो है हयात। हयात ने क्या किया था? एक्सटर्नली आके एनर्जी Okay. पुट की थी सिस्टम में। तो जो हम मेडिसिन लेते हैं, जो हम ड्रग्स लेते हैं, जो हम इनहिबिटर्स लेते हैं, कैंसर थेरेप्यूटिक्स हैं, टारगेटेड थेरेपीज हैं, केमोथेरेपीज हैं, डिफरेंट काइंड के हैं वो मॉलिक्यूल्स। What they do is exactly what Hayat did. Hayat ने क्या किया था बच्चों? Anyone wants to elaborate that again? सिस्टम में आके एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड की थी ताकि सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हो सके। System बिल्कुल, को perturb कर दिया था। सिस्टम को प्रोटेक्ट कर देता है। ऐसा जरूरी नहीं कि एंट्रोपी इंक्रीज हो। आई मीन दिस इज थर्मो की क्लास में वी कैन डिस्कस दैट, बट यू नो फॉर नाउ लेट्स अस्यूम कि चेंज हो गया। ठीक है, यस सर। अच्छा अब देखो यहाँ पे हयात ने आके पुश किया है। सो व्हाट शी हैज डन इज, लेट्स कॉल दिस ड्रग 1। सो इसने आके पैथोलॉजिकल अट्रैक्टर को, जो अट्रैक्टर हमें नहीं चाहिए था, उसको इसने पुश अप किया सच दैट the healthy state becomes a deeper attractor as compared to this condition. Huh? ठीक है? You see the transformation? So the healthier state has taken up a deeper position, a higher probability in the attractor landscape as compared to the pathological state जहां पे drug ने आके act किया D1 में। ठीक है, सो इट्स जस्ट लाइक दिस, आपने हाथ से उसको ऊपर पुश कर दिया तो दूसरा अट्रैक्टर जो है वो नीचे और डीपर हो गया। ठीक है, अच्छा नाउ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं आपको कुछ ऐसा बताऊं, कुछ ऐसा मैकेनिज्म बताऊं कि जो आपने बायोमोलेकुलर नेटवर्क्स बनाए हैं, उनको आप कन्वर्ट कर लें इनटू these attractive landscapes, और फिर आपको ये भी पता हो कि कौन सी थेरेपी कहाँ पे एक्ट करती है, और आप उसको जाके थेरेपी को यू नो इंट्रोड्यूस कर दें सिस्टम में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट एज अ mechanism to evaluate therapeutic response of your networks? हाँ जी, फिर तो significant change आ रहा है। जो हमारा पहले बना हुआ था एक डेप्थ जो थी हमारे अट्रैक्टर की, and after the application of the drug, उसमें फिर change significant enough आ रहा है, so we would rather say that the drug is effective, can be used for that purpose. very good, Zainab. This is exactly what we do. We construct बायोमोलेकुलर नेटवर्क्स। देखो हमारा सिस्टम बायोलॉजी के कोर्स की जो मोस्ट क्रिटिकल कंट्रीब्यूशन है वो क्या है?
कि हम बायोमोलिक्यूल से उठ के बायोमोलेकुलर नेटवर्क पे आ गए। और अगर आपके पास बायोमोलेकुलर नेटवर्क जो है उसको एक लैंडस्केप में कन्वर्ट करने का आपके पास टूल हो, तो यू कैन एक्चुअली सी कि व्हाट काइंड ऑफ अट्रैक्टर्स एग्जिस्ट। फिर आप भी डाल दें और फिर आप उन अट्रैक्टर्स के अंदर जो चेंज आ रही है उसको भी आप देख पाए, है ना? That would be super awesome. And actually this is what people do, right? This is what systems biologists do. Now I would want you to internalize this discussion, okay? And we will come back to this in a few moments, okay? We'll go back to the network part. So this attractive landscape is the other side of it's the other bridgehead, okay? And we are standing at the network. So we'll really need to see how to transform the network into the landscape. Okay? Before we move on, can I ask a question? Sure, Zainab. Go ahead. So how do we get to know, okay, which, like, we know that there would be a change in the landscape if a drug has been applied, but how can you confirm the fact that this drug was effective enough that it should be used, or the efficacy of the drug is not this high that it should not be used? Does it have effects or does it have a good efficacy, right? You want to know. Yeah, अच्छा, exactly. मुझे ये बताओ कि सो एक्चुअली अभी हम ना उसी की तरफ जाने लगे हैं, लेकिन मैं आपको उसको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपके सवाल के जवाब में। जो आगे चीज़ है उसका इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। मुझे ये बताओ कि P53 की पिछली दफ़ा हमने बात की थी। P53 जो है वो एक ट्यूमर सप्रेसर था। Yes, sir. ट्यूमर सप्रेसर था P53। तो आपने एक सिस्टम के अंदर अगर P53 0 हो जाए, what will you say about that system? For some time it might be stable, but forever or for long, momentarily it's fine है, but for long it's not a stable system. खराब हो जाएगा। मेरे बेटे मुझे ये बताओ कि एक सेल है उसमें P53 ऑफ है, तो कैंसर सेल जाएगा। कैंसरस सेल है, बिल्कुल ठीक। अब देखो एक और मैं तुम्हें जीन बताता हूँ, ऑन्कोजीन है रैस, RA। yes. अगर रैस भी ऑन है, P53 ऑफ है, रैस ऑन है, तो वो प्रोलिफरेशन ज्यादा होगी अगेन कैंसर की तरफ चला जाएगा। हाइपर प्रोलिफरेशन होगा, बिल्कुल सही। सो इसका मतलब है कि ये डेफिनेटली कैंसर सेल है। यस सर। अगर बेटे मैं इस तरह कहूँ कि जो आपकी जो यहाँ एग्जांपल में, लेट मी शेयर दैट एग्जांपल। इस एग्जांपल में गौर करो, हर पोजीशन जो है इस लैंडस्केप की, दैट इज अ ग्रिड पोजीशन, राइट? यस सर। यस एग्जैक्टली। ये जो ग्रिड पोजीशंस हैं इनको इकट्ठा करके लैंडस्केप बन रहा है ना? यस सर। अगर हर ग्रिड पोजीशन जो है वो एक खास नेटवर्क स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, तो एक कैंसर, एंड गिवन कि ये कैंसर सेल का अट्रैक्टर लैंडस्केप है, तो मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे P53, रैस, APC और PI3K, इन 4 जीन्स का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? P53 नहीं होगी। नहीं होगी 0, रैस होगी 1, APC क्या करती है सर? I think it's also an oncogene. Okay. Manu, is that right? And P13 तो yes it is. तो मुझे ये बताओ, हाँ मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास जो आपकी अट्रैक्टर लैंडस्केप की जो लोएस्ट पोजीशन है उसके ऊपर ये वाली नेटवर्क स्टेट हो, व्हाट कैन यू कॉल सच अ सेल? Perhaps a cancer cell, है ना? अच्छा, अब अगर जो ड्रग ने एक्ट किया है
ड्रग ने एक्ट कैसे किया है कि इसको 1 कर दिया। one किया है, कर दी। इसको 0 कर दिया है, इसको भी 0 कर दिया है और PI3K को भी 0 कर दिया है। ठीक है, ठीक है। सो ये ड्रग जो है जब ये एक्ट करेगी इस लैंडस्केप के ऊपर, तो आपका जो लैंडस्केप है वो फ्रॉम दिस इट माइट जस्ट शिफ्ट टू दैट, Normal. सो Yes, cancerous as you agreed earlier, है ना ये लोग? yes. So what will be this landscape? A normal cell. नॉर्मल सेल। Okay? So in this way, by looking at each grid position within your landscape, you can see the profile of each biomolecule within the system. ठीक है, and call out कि यार ये landscape के अंदर ये वाली चीजें on हैं, ये वाली off हैं, and therefore some of the landscapes are cancerous and some of them are of a normal cell. ठीक? Does it make perfect sense? Yes, sir, it does. But if you have different drugs, drug 1, drug 2, and drug 3, and if you want to compare their activity, so final जो steady state है for normal cell की वो तो same आएगी 1000, or maybe it would be in terms of decimals. देखो, so if you have multiple drugs in different systems, ठीक है, so normal के तरीके से हो सकते हैं। normal ऐसे भी हो सकते हैं कि आप proliferation को उड़ा दें, hyper proliferation को उड़ा दें, आपका सेल नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा हो सकता है कि आप सेल को एपोप्टोसिस करा दें, फिर भी नॉर्मल हो जाएगा, है ना? Okay, fates, ठीक है। हाँ, एक इनकी कैंसर सेल की आपने जान छुड़ानी है ना, तो जी उसको सर, रिपेयर कर लें या उसको किल कर दें। Either way you end up with, you know, DNA रिपेयर होगी, क्रिस्पर नॉक आउट या जो भी जीन एडिटिंग कर लें या फिर उसको एपोप्टोसिस में पुश कर लें। ठीक। अच्छा, थैंक यू सर। हाँ, वेलकम। ओके, सो does this story make perfect sense to everyone? यस सर। ये कोई ऐसा तो नहीं है? फजीला बिल्कुल खामोश, आई थिंक उसका माइक बंद है अभी भी वैसे। फजीला, कैन यू हियर अस? Yes, sir, I can hear. Oh, perfect. We heard you as well, Eureka. Okay, so moving on, now I will tell you how to start the analysis of networks by modeling them using different kinds of models. So जो अभी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, हम उनको कहते हैं logical Boolean models. So what this does is it gives you these models and you convert them into logical rules. So this network here is a network that regulates cell death in the normal cells. ठीक है? So दो किस्म की सेल डेथ्स होती हैं नौजवानों, कुछ बताओ कौन कौन सी? एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस होती है, नेक्रोसिस होती है, and then there is necroptosis, there is autophagic cell death, और इसके अलावा सर ऑटोफेजिक जो है वो एपोप्टोसिस में आएगी ना, क्योंकि वो प्लान्ड होती है। is not strictly apoptosis. Yeah. So there are multiple modes of cell deaths. ठीक है. So इस केस के अंदर this is just the apoptosis में. ठीक है. Not necrosis, not necroptosis, not autophagic cell death. ठीक है. So हम देखना चाहते हैं कि apoptosis कैसे एक सेल प्रोग्राम करता है. So without going into a lot of biology, I'm not an expert at it, but briefly. So there are two types of apoptosis. One is intrinsic apoptosis and the other one is extrinsic apoptosis. Intrinsic apoptosis में कैसे, okay, any biologist wants to add here to intrinsic or extrinsic? Hayat? Hello? Hassan? I don't have any idea. You don't have any idea. कोई मसला नहीं. So let me summarize. No problem. Extrinsic cell death होती है कि जब आपके सेल के डेथ रिसेप्टर के ऊपर आके लिगेंड बाइंड करता है और वो डाउनस्ट्रीम डेथ के सिग्नल को एस्केलेट कर देता है इनटू द न्यूक्लियस.
ठीक है. सो दिस इज एक्सट्रिंसिक के बाहर से आके कोई सिग्नल मिला एक सेल को कि यू डाई. इंट्रिंसिक सेल डेथ होती है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन है, जो माइटोकॉन्ड्रिया इज द एनर्जी सेंटर ऑफ, you know, there are thousands of mitochondria within every cell, and within each mitochondria it's a double layered membrane, है ना. इतना तो मेरा ख्याल है देखा ही होगा, कहीं ना कहीं नजर से गुजर गया होगा. Yes, sir. So they carry these BCL2 class of proteins. ठीक है. So and when the mitochondrial outer membrane pores are opened, so जैसे ही पोर ओपन करते हैं तो जो BCL2 बैग्स ये सब लोग जो है ना ये बाहर निकल जाते हैं from the mitochondria, and as soon as they go out, so these proteins, the bags and back, when they control this outer membrane, as soon as the outer membrane pores are opened, these molecules, bid and bags, they move out into the cytoplasm, and they bind with APAF1, and APAF1 then activates procaspase 9, and eventually downstream you have procaspase 3 and 7. So the signal kind of travels into death execution through active caspase 3 and 7. Okay? So this is the intrinsic cell death, and this pathway ये आपका ligand आके bind किया है आपके death receptor के साथ, ठीक है. और then the signal again goes through procaspase 3 and 7 into active caspase 3 and 7. Now these are the biomolecules that kind of regulate apoptosis. Okay, you can read more about these pathways in detail, but briefly this is the model that we are planning to convert into logical Boolean models. सर इसमें जो एक्सट्रिंसिक है वो भी अगर दूसरे तरीके से वो इंट्रिंसिक से भी कनेक्ट हो रहा है. हाँ बिल्कुल. So what happens is कि downstream जो process है, if you look here, it is shared between the two. नहीं सर मैं ऊपर वाले एरोस की बात कर रहा हूँ, ये जो बिड और सी बिड और हाँ. So what happens is कि जो active caspase 8 है ये T bid को cleave करती है यहाँ पे. So what happens is कि once it is cleaved, so then the C bid, it goes and kind of acts with along with BCL2 and BCLXL. Okay. So there are these crosstalks in these pathways, which you know you can study from specific publications on these topics. Now the thing is, if you were to look at such a figure, how are you going to convert it into a model? So to start with that, the first thing that you need to do is you need to see which two molecules are required necessarily, or which two molecules are required as an option, or which molecule is not required. ठीक है. So इनको हम तीन logical gate से हम abstract करते हैं. So one of them is the AND gate. ठीक है. ये अच्छा मुझे बताना जिसको इसका अंदाजा नहीं है, I'll explain this in AND gate. The other one is the OR gate, and here you have the NOT. ये तीन चीजें हैं, ये भी NOT है. ठीक है. So इस तरीके से हम इनके कॉम्बिनेशन से हम एक लॉजिकल सर्किट बना सकते हैं फ्रॉम अ बायोमोलेकुलर रेगुलेटरी पैथ. ठीक है. एजी यू लुक वरीड. गुड. ओके ग्रेट. फजीला you're good as well. Fazila is missing in action. Hayat and Fazila, we can't see both of you. Okay. She's back. Hayat, all right. So बच्चों अब करना ये है कि आपने देखना है कि Hassan, how was the external death signal acting in the extrinsic cell death pathway? The ligand अटैच हो रहा था. ligand आके अटैच होता था रिसेप्टर के साथ. अगर दोनों एन होंगे यानी कि दोनों प्रेजेंट होंगे, एन गेट का तो yes sir, 1 1 1. Right, 1 and 1, so it will be 1. So ligand and receptor complex is going to then add to FAD. ठीक है, जो आपने पिछली फिगर में देखा है. और इस भी आपके पास एंड होना चाहिए. अगर FAD डोमेन नहीं होगा तो ligand and receptor complex will not be able to activate it. ठीक है.
Yes. You continue, and then here you have ligand, receptor, and Fad together, okay, in a complex. Now, at this point in time, you should not have flips, okay? So what was flips? It was probably an inhibitor of apoptosis, right? Yeah, it's an inhibitor of apoptosis, right? So once you have flips, then you cannot have apoptosis. So in order for us to perform apoptosis, we added this not here. सर ये Okay? NAND गेट हो गया, ये ओवरऑल NAND गेट हो गया. Yes. इसमें एक नॉट है, दो नहीं है, ठीक है? जस्ट एक नॉट और एंड है ना, तो NAND. no, NAND is different, not and. That is different. वो यहाँ मेरे ख्याल है उसके आखिर में आता है, ठीक है? बट ठीक है, Right, right. अच्छा. सो अब आपने इसकी जो आउटपुट है वो जानी है कैस्पेज 8 के अंदर, ठीक है? सो कैस्पेज 8 इन प्रेजेंस ऑफ सम अदर सिग्नल्स कैन ट्रिगर कैस्पेज 3 डेथ. अब देखो यहाँ पे ये जो गेट आपका लगा हुआ है, ये कौन सा है? Or और ये और क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पे देखो, आप इंट्रिंसिक सेल डेथ्स भी आ सकती हैं, राइट? ये आपका extrinsic. ठीक है? सो दोनों में से कोई भी आएगा तो हम सेल डेथ को गुड कह देंगे, ठीक है? सो अब आप लोगों ने क्या करना है? सो यू आर गोइंग टू रिकंस्ट्रक्ट दिस सेल डेथ नेटवर्क एज अ कुकी पॉइंट. इससे आप लोगों को जबरदस्त लर्निंग मिलेगी. आप लोगों ने लिटरेचर जाना है और इसको एक अच्छी सी इसकी फिगर बनाएं कि सेल डेथ कैसे चलती है, और उसका लॉजिकल मॉडल बनाना है आपने. और अगर मैटलैब का अंदाजा है, so you can evaluate the logical networks by just inputting them into the MATLAB Simulink. वैसे तो आप कोई भी टूल यूज करना, doesn't matter. So you will get the output from the logical model, ठीक है? इसी नेटवर्क को आप स्टार्ट करें रेप्लिकेट. It shouldn't take you more than 5 minutes, ठीक है? अगर लॉजिक गेट्स, डिस्क्रीट डिजिटल डिजाइन पढ़ा हुआ है आपने तो बहुत ही हेल्प करेगा आपको. खैर, ये तो हो गया कि जो स्टैंडर्ड नेटवर्क है और उसकी स्टैंडर्ड आउटपुट है. नाउ वेयर इज द थेरेपी जो हमने हयात के जरिए, यू रिमेंबर कि हमने बेडशीट के ऊपर जो हमारे डिफरेंट कैनन बॉल्स स्कैटर किए हुए थे, एंड वी हयात केम इन एंड इनपुट a drug, yeah, by adding energy into one of the attractors. So वो हम कैसे इसमें incorporate कर सकते हैं? Any suggestions? Yeah, sir. So receptor पे हम हमारा ड्रग बाइंड कर सकता है, तो यहाँ पे कुछ लिगेंड बाइंड कर रहा है, तो इसी तरह उसकी जगह पे, लिगेंड की जगह पे कोई ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड कर ले. वेरी गुड. सो आप अपने लॉजिकल मॉडल को मॉडिफाई कर सकते हैं बाय इंक्लूडिंग द ड्रग. फेयर ना? ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन हियर. So what we have done is, we have added a couple of drugs, knockout drug 1 and knockout drug 2, that act on specific molecules within your logical circuit, okay, such that they induce apoptosis or remove apoptosis depending on the drug. Okay, so just like an additional input, an additional factor जो फजीला कह रही है, you can incorporate that into your logical circuit as well. So as a result, you will be having a modulation of cell death in your circuit. Fine. अच्छा, ये तो काम आप करेंगे point के लिए. So you can do it till the next class. वैसे तो you can also use the same network for I don't know if somebody is looking at apoptosis in your research or not, but you can try this in your BS project or MS project, whatever, as well, and expand. MATLAB पे ही तो ये MATLAB पे ही करना है? किसी में भी कर लो बेटे. ये ना उसमें MATLAB में मैं इसलिए कह रहा था कि उसमें ना ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाती हैं, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, ये सारे सिमुलिंक
पड़ेगा। हाँ हसन, सिमुलिंक पे हो जाएंगे मेरे ख्याल से। सिमुलिंक पे हो जाएंगे, मैं यही कह रहा था। तो उसमें आपको लिखना नहीं पड़ेगा, तो 2 मिनट में आपका काम हो जाए। ठीक है, आपने सिर्फ ड्रैग ड्रॉप करना है। यस You have to follow the apoptosis network, and you can obviously do it in Tyson as well अगर उसके साथ एक्सपोजर है तो। ठीक है, okay. So now, if you have a large network and you have converted it into a logical circuit, then can you convert it or simplify it into a representation? The representation is called the Blake canonical form. A very large circuit can be summarized by simply stating that caspase dependent depth, active caspase 3 and 7 we saw at the bottom of the pathway for cell death. So what you can do is you can convert the complexity of logical circuit into this very simple form that is called the Blake canonical form. And here you can see that caspase dependent death is equal to external death signal, ठीक है, ligand जो आया है अपने receptor के साथ bind किए, and FLIPS की absence हो, and independent inhibitors of apoptosis भी ना हो, ठीक है. So this will translate to cell death, or that is यहाँ फिर cell damage हो जाए, and not ARC and not IAPs again will also result in cell death. So इतना बड़ा circuit जो आपका वो इतने complicated उससे convert होके एक बड़ी simple सी Blake canonical form में आप लिख सकते हैं for evaluation. We call these the rules. So in Tyson, that is one of the projects in the lab, in my lab. So we write rules to analyze networks. So this is one of the rules for regulating caspase dependent cell. ठीक है बच्चों? Okay. Now moving on, if you analyze this network, ठीक है, Blake canonical form लेके आपने उसको analyze करना है with and without drug. हम वही जो हमने क्लास के शुरू में डिस्कशन की थी उसी को अब हम लॉजिकल सर्किट्स और फिर इवेंचुअली थेरेप्यूटिक्स की तरफ लेके जा रहे हैं. So what you have done is that you have A, B naught, D naught, or C, D naught, E naught, right? यहाँ पे आपको लेजेंड में उसके सारों के नाम लिखे हैं. And with drugs, यही चीज जो without drugs चल रही थी, with the drug will be, because the drugs were acting on the let me show you. Yeah, here you go. So this was the intrinsic pathway, right? You remember? और इसके अंदर 2 ड्रग्स ऐड की. सो यहाँ पे आप देखें हमने इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर हमने वो ड्रग्स ऐड किए हैं, कोई एक भी हो दोनों ड्रग्स में से, एंड दिस इन्वर्टेड V इज एंड, ठीक है. अगर ड्रग मौजूद हो तो फिर आपका अपॉप्टोसिस, और यहाँ पे F1 या F2 दोनों में से कोई भी हो सकती है, ठीक है. सो अगेन Blake canonical form without drugs and with drugs for a very large biomolecular network that has been converted into a logical circuit. यहाँ तक सारे क्लियर हैं. सिर्फ एक स्लाइड अब और रह गई है जिसमें हम फिर इसको कंक्लूड करेंगे. जी यस. The apostrophe represents what? Not. Previous time. apostrophe not को रिप्रेजेंट करते हैं. हाँ, apostrophe is not. ठीक है. Okay. Hello. Can you hear me? Yes, Am I- sir. Okay. ठीक है. सो बच्चों इसमें ये है कि आपने डिफरेंट बनाए सर्किट्स बनाए फ्रॉम पैथवेज, Blake canonical फॉर्म में लिखा, फिर आपने उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज द आइडिया ऑफ द एंटायर एक्सरसाइज, एंड हियर इज वन एग्जांपल. So BC or ABC not, bar again, bar is not as well. So apostrophe and bar both are not. Okay, and AB, or AB not, or
DA naught B naught C naught or B naught C naught A is equal to 0. So this will be, you know, the overall form, and then you summarize it into the expression given here below by simply factoring it. Okay? So So y equal to 0? so this will induce the cell death. Okay? So इनमें से कोई भी हो cell death होगी. ठीक है? The cell will go on. ठीक है. अच्छा, अब ये तो स्टैटिक पिक्चर थी ना बच्चों. देखो पूरा जो सर्किट आपने देखा है इसकी एक पिक्चर थी. हमने प्रीवियसली क्या किया, पहले सेशंस में इसकी टोपोलॉजी देखी है. अब हम इसकी जो लॉजिकल मोलेकुलर एक्सप्रेशन है उसको देख रहे हैं. लेकिन एक चीज अभी भी मिसिंग है बच्चों इसमें से. वो क्या है? टाइम. वेयर इज द डायनामिकल पोर्शन, है ना? तो डायनामिकल पोर्शन के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं. So you would want to convert your Blake canonical forms into truth tables. ठीक है? ट्रूथ टेबल कैसे बनता है? सो यहाँ पे देखो A नॉट C नॉट के केस में D1 था. ठीक है? A नॉट C नॉट केस में D1 था. So let's pick it up. Let's make it ourselves. So डेथ 1 हो जाएगी. ठीक है? सो यहाँ पे चाहे 0 हो या 1. ठीक है? ये वाली बात सही होगी एवरीबॉडी? ठीक है? अच्छा, अब बी सी. सो दिस शुड बी 1 and 1. यहाँ पे चाहे 0 हो या 1 हो, 1 में डेथ 1 हो जाएगी. ठीक है? इसी तरह इस केस में बी नॉट सी नॉट देख लें. प्लस 1 हो जाएगा. ठीक. अब गौर करें कि ये वाली चीज ऑलरेडी यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है ना? सो इसलिए इसको नहीं लिखते, रेपिटेशन हो रही है. इसी तरह ए नॉट बी. अच्छा, अब इस चीज को हम अगर एक्सपेंड करें ना तो हमें ये वाला टेबल मिल जाए. ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड द ट्रूथ टेबल. ठीक है? आपका लॉजिक है, आपका ट्रूथ टेबल. अच्छा, अब ट्रूथ टेबल जब आपके पास, तो आप गौर से देखिए कि अगर आपके पास नेटवर्क है जिसके 3 नोड हैं, ए बी और सी, तो क्या ये वाली जो तमाम स्टेट्स हैं ये आपको उसकी एग्जॉस्टिव स्टेट्स देती हैं? एग्जॉस्टिवनेस ज़ीला, रिदा, हयात, हसन, खामोश. सर इसकी समझ नहीं. एग्जॉस्टिव स्टेट आप किसे कह रहे हैं? एग्जॉस्टिव स्टेट किसे कहते हैं? ओके, नो वरीज. देखो बेटे, आपका एक नोड है, ये कितनी वैल्यू ले सकता है? 0 और 1, 2 वैल्यूज. ठीक है? अगर आपका 2 नोड हैं तो ये क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं? 4 वैल्यूज है ना? आपके 3 नोड हैं तो ये क्या कितनी वैल्यू ले सकते हैं? 8. क्या ये 8 हैं? 2 raised to the 3. यस. सर. हाँ, तो एग्जॉस्टिव हो गया ना, इसमें कोई चीज मिसिंग नहीं है. हर जो भी पॉसिबल स्टेट आपका नेटवर्क ले सकता है वो हमने यहाँ लिखी हुई. यस सर. ठीक हो गया? अच्छा. Yes. ऑलराइट. रिदा, व्हाई आर यू साइलेंट? यस सर. Yes, sir. ओके ओके. सो आपने यहाँ पे क्या बनाया? एजी, इट्स कॉल्ड द एग्जॉस्टिव स्टेट स्पेस. फाइन. Yes, sir. एजी, all right, I think she does not have a mic. No worries. So अब हमने क्या करना है कि अब मैं आपको मेरी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने ऑटोफेजी एक नेटवर्क बनाया था और मैं आपको वो नेटवर्क यहाँ पे दिखा रहा हूँ. सो शी लुक्ड एट वेरियस इनपुट्स, वेरियस प्रोसेसिंग नोड्स, वेरियस आउटपुट्स
that actually convert to specific self-fates. अच्छा बेटे देखो self-fates वही हैं जो आपके क्या हैं attractors. ठीक है. So यहाँ पे आपकी इनपुट्स है. एक कॉम्प्लिकेटेड सा नेटवर्क है जो ऑटोफेजी को रिलेट करता है और उसके उन्होंने रूल्स बनाए. ठीक है. सो दीज आर द लॉजिकल रूल्स. ठीक है, यूजिंग द ब्लेक कैनोनिकल फॉर्म यहाँ पे लिखे हुए हैं. ठीक. फिर उन्होंने इसका एनालिसिस किया और फिर उसे क्या कंस्ट्रक्ट किया, अट्रैक्टिव लैंडस्केप. ठीक है. अट्रैक्टिव लैंडस्केप कैसे कंस्ट्रक्ट किया, इससे वहां कैसे पहुंचे, उस पे हम आएंगे. ठीक है. दैट इज द प्रॉमिस दैट वी विल कीप इंशाल्लाह ड्यूरिंग दिस कोर्स. यू विल नो इट. ठीक है. लेकिन अभी आपको सिर्फ कंप्लीट पिक्चर पता चल गई, हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ पे जा रहे हैं. ऑलराइट. अच्छा, नाउ एडिंग टाइम. अब जो हमने एग्जॉस्टिव स्टेट स्पेस बनाई थी ABC की AG है ना, अभी हम एग्जॉस्टिव स्टेट स्पेस बना के आए थे. अब हमने देखना है कि ओवर टाइम वो कैसे चेंज करती है. So let's see in this very, very simple basic example, you have a network of 3 nodes, V1, V2, V3, and you are going to study this over time. ठीक है. इस नेटवर्क को ओवर टाइम आपने स्टडी करना है. अब सवाल ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पे बेटे देखो सारे हयात, आई थिंक you should remember from your 101 perhaps. So this input is your exhaustive AG. ऐसा ही है ना. अब आपने यहाँ से ये पहली स्टेट पकड़ लेनी है, पहली नेटवर्क स्टेट. 0 0 and 0. बेटे मुझे ये देख के बताओ कि इसकी आउटपुट क्या होगी. सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, आपने इस नेटवर्क को ओपन करना है. ठीक है. सो आपके पास आ गया 0 है ना, ऐसा ही है ना. जी सर ये V3 1 नहीं होगा क्योंकि इनहिबिट कर रहा है V1 V3 को. V3 एक्टिवेट कर रहा है V2 को. सर V1 जो है V3 को इनहिबिट कर रहा है. वन जो है वो V3 कर रहा है. हाँ, इनहिबिट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो. यस ओके सर, मैं नीचे वाला देख रहा हूँ. यस सर. हाँ ठीक है. अच्छा, अब मुझे बताओ कि डाला यहाँ पे इक्वल 0 पे, यही था ना. यस सर. आउटपुट क्या आएगी, 0 0 1. 0 0 1. देखो मैंने इसके आगे जो आउटपुट लिखी है T+1 गाइस, T+1 पे ये नहीं बोलना, ये करेक्ट है फिर. यस सर. Yes, sir. अच्छा, अब इसकी जगह देखो डालो 0 0 1. क्या आउटपुट है, 0 0 1. सो ये अट्रैक्टर बन गया. ये भी 0 0 1 थी, ये भी 0 1. तो ये सारे अगर हम इस तरह डालें, अच्छा चलो 0 1 1 डाल के 0 1 1 डाल के कोई और बच्चा बताएंगे, ज़ैना बताएगी 0 0. सॉरी एक मिनट सर ये जो 0 0 1 है ये तो अट्रैक्टर नहीं बन गया. एक मिनट. अब मुझे बताओ 0 1 1 डालें ज़ैना तो क्या होगा. देखो ना, 1 तो सीधा ही 1 पे आ जाएगा है ना, 0 सीधा ही 0 पे आ जाएगा. 0 और ये क्या है, इनहिबिटर. Inhibitor. तो क्या हो जाएगा. हाँ जी, अब आवाज आ रही है. यस, V3 is also activating V2 नहीं, तो if V3 is 1 तो V2 को भी 1 नहीं होना चाहिए. वो T और वो T+1 है. बेटे यहाँ पे एंड है ना. And gate लगा. Oh, sorry. ये लिखो. हाँ कोई मसला नहीं. ठीक है. सो 1 0 1 आ गया. ठीक हो गया. अब देखो हसन ने शो डाला हुआ है, कहता है 0 0 1 तो अट्रैक्टर बन गया. क्यों भाई, अट्रैक्टर कैसे पता चला? क्योंकि 0 0 1
001 ही आउटपुट दे रहा है, तो सिस्टम उसी के दरमियान में ही रहेगा, और 000 से सिस्टम Point अट्रैक्टर में जाता है। हाँ, ये नहीं कि 000 से भी वहां पे जा रहा है, 001 से भी वहां पे जा रहा है, तो इसी तरह देखो 010 से भी और 011 से 101 जा रहा है, तो essentially दो 01 से है आपके पास। 101 010 से फिर 101। यस सर। Yes. 101 से 010 में जा रहा है, तो वो भी अट्रैक्टर, यस। एग्जैक्टली। There's Zero- 001 point attractor है ना? हाँ, 010 देखो ये वापस उसी के अंदर उसने चले जाना है। यस सर। हाँ सॉरी, सो बाकी क्या कह रहे हैं भाई, एनी क्वेश्चंस? There's 001 point attractor है ना? हाँ यार, सो पॉइंट और साइक्लिक अट्रैक्टर ये अभी हम गौर से देखेंगे, ठीक है। पॉइंट और साइक्लिक अट्रैक्टर अगर आपको याद हो, उसमें हमने पीछे गुजरी है, लेट मी रीच आउट टू दैट। हाँ यार देखो, पॉइंट अट्रैक्टर है, यू आर वेरी राइट, लेकिन एक और किस्म भी होती है, कहते हैं साइक्लिक अट्रैक्टर। यहाँ पे हमने वो आपको याद है या हमने डिस्कस किया था कि इस से 10 जो है 11 और इवेंचुअली ये पूरी साइकिल चलती रहती है, यहाँ से इधर को जाता है, फिर वहां से वापस आता है ना। यस सर। जी सर। तो सर इस एग्जांपल में दोनों थे। हाँ, इस एग्जाम्पल में दोनों हैं, वेरी गुड, शाबाश। सो लेट्स गेट बैक टू द एग्जाम्पल। ये सो आपके पास 001 भी आ गया है, 001 सेकंड टाइम भी आ गया, 101 भी आ गया, और 101 से कहाँ जा रहा है? 010 पे। 010। अच्छा, तुम लोग सारे बड़े समझदार हो, तुम लोग इस तरह करो, एक कागज पे ना जरा स्टेट्स बनाओ। 000 से, चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, देखो 000 से हम कहाँ पे गए? 001 पे। ठीक है, 001 से कहाँ पे गए? 001 में है। हयात कह रही है कि ये एक साइक्लिक अट्रैक्टर है। नहीं सर, 001 001 point पॉइंट attractor। अट्रैक्टर है। हाँ, वो तो पॉइंट अट्रैक्टर तो है, लेकिन ये खुद भी अपने ऊपर ही जा रहा है ना? यस सर। इज इट राइट? यस सर। यस सर। हाँ, अब बताओ 010 कहाँ से जा रहा है? 010 101 101। 01 101 किस पे जा रहा है? 010 सर, वो बैक एरो लगा देंगे तो वही हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड। ये देखो एक और साइक्लिक अट्रैक्टर मिला। यस सर। ठीक है, अच्छा और बताओ, और इसके अलावा क्या सारी स्टेट्स हो गई हैं? बाकी स्टेट्स का कनेक्शन होगा, वो हम इस तरह बनाएंगे। वेरी गुड। सो इसको हम कहते हैं स्टेट ट्रांजिशन मैप, ठीक है, स्टेट ट्रांजिशन मैप। सर ये यहाँ- 000 में 100 से आ रहे हैं, 100 से। नेटवर्क स्टेट ट्रांजिशन मैप। ठीक हो गया बच्चों। अब देखो कितना कन्वीनियंटली हमने इसमें टाइम की डिमेंशन ऐड कर दी है, मजा ही नहीं आ गया। देखो बायोमोलिक्यूल भी आ गया, उसका नेटवर्क भी आ गया, उसका लॉजिकल मॉडल भी आ गया, उसकी टेम्पोरल एवोल्यूशन भी आ गई है, और उसमें से हमने पॉइंट और साइक्लिक अट्रैक्टर भी निकाल लिए, यस सर। है ना। सो यू आर नाउ fully equipped to analyze biomolecular networks on your own, हैं? Yes sir. So I have a Very- question. हाँ जी बेटा, yes. सर वो वाली अट्रैक्टर्स जो कि बहुत जल्दी वो वाली स्टेट जो कि बहुत जल्दी अट्रैक्टर में पहुंच जाती हैं, जैसे जो साइक्लिक है या नहीं, जो पॉइंट है एक ही स्टेट चेंज के बाद वो पहुंच रहे हैं, या फिर वो वाले जो 4 या 5 स्टेप्स के बाद कन्वर्ज हो रहे हैं स्टेडी स्टेट में, उनमें क्या डिफरेंस होता है बायोलॉजिकली? हाँ यू हैव टू। बेटे मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है हमारी माइकल लेविन से मीटिंग हुई थी, है ना। यस सर। वो क्या करता है, वो कॉस्ट एनालाइज करता है, यस सर। या करना चाहता है व्हाटएवर। तुम देखो लेंथ ऑफ अट्रैक्टर जो है ना, दैट इज एक्चुअली द कॉस्ट, द बायोलॉजिकल कॉस्ट, द बायोमटेरियल दैट इज इन्वॉल्व, यू नो, द बायोसिंथेसिस। अगर एक अट्रैक्टर तक पहुंचते हुए 10 स्टेप लेने पड़ते हैं, तो 10
एक्टोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगे। Hmm. अगर एक स्टेप में आप अट्रैक्टर पे पहुंच जाते हैं, इट्स अ सिंगल Energetically more feasible. Yes. assuming that all reactions have an equal cost, which is actually a very big assumption, Yeah. then Yeah. True. attractors will be proportional to the cost it takes to reach that attractor. Huh? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, So so ऐसा हो सकता है कि if you are taking more steps and you are paying less cost as compared to if you are taking less steps. हाँ बिल्कुल हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? It all, Dijkstra's एल्गोरिथम में जिस तरह हमने किया था। हाँ, it all depends on the cost of each reaction. Okay. So Yes, I sir. said assuming that the cost is equal, which is obviously not the case, ठीक है. we would assume the attractor length, yeah, the Yes, trajectory sir. reflective of the cost of the biological cost of that attractor. Okay. Thank you, sir. Yes, sir. हाँ Thank वेलकम। you. चलो ठीक है, सो यहाँ पे हम रुकेंगे और अगली दफा मैं आपको बताऊंगा कि इन अट्रैक्टर लैंडस्केप्स को कैंसर के साथ हम कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, कि कौन सी स्टेट्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोबेबल होती हैं, कौन सी लेस प्रोबेबल होती हैं, एंड हाउ द अट्रैक्टर प्रॉपर्टीज कैन बी इवेल्युएटेड टुवर्ड्स therapeutic interventions and personalization of these networks. ठीक है, चलो आई होप हम थोड़ा सा हमारा मोरल अच्छा हो गया होगा आफ्टर बीइंग अनएबल टू मीट इन पर्सन। तो आफ्टर द feast from the Lahore Museum and the adventure in the cricket ground, Fazila, yes, चलो ठीक है। Yes, sir. All right, good. Chalo, if there are no more questions, then I will take leave. ठीक है? Yes, sir. All right. Okay, बच्चों, take care. Allah Hafiz. Love. Love, sir.